Okay guys, so this is Hitesh Bhatia and this is editorial video of question pathetic products. Okay, and code chef cook of 2020 July division 1. Okay, so if you have not subscribed this channel, then you can subscribe this channel. I post videos related to competitive programming and web development. Okay, and now directly to the question. What we are having, we are having a tree of n nodes, okay, from 1 to n, and the tree is undirected graph without cycle. Okay, तो undirected graph without cycle tree होता है obviously. Now what we have to do is we have to assign an integer to each node and let's denote assigned to node I by ai. ठीक है, okay. So this assignment must satisfy two conditions, that ai should be less than 2 into 10 raised 18, and each simple path in tree, let's denote the set of nodes in this path by s. Let's denote this simple path by s. Then the product p should be equals to product of ai is divisible by mod f. Okay, so मैं ये statement अभी समझाता हूँ. Then what we are having in input is t and test cases, and then number of nodes obviously, and then edges between u and v node. Okay, and we have to simply output all the numbers assigned to n nodes. Okay, constraints are less than 100, so एक अच्छी चीज़ है. Then we'll see कि first example. Okay, 6 and 1 2 2 3 1 4 5 1. So let's draw this graph firstly. Okay, ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है 1 2 3 4 5 6. सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ दिस ग्राफ हियर. ओके, सो 1 2 3 4 5 and 6. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर आप एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में फर्स्ट क्या समझाया है कि लेट सपोज वी हैव असाइंड दीज नंबर्स टू दिस शेल लाइक 2 and 3 and 2 and 6 and 5 and 4. Then if we see the path 2 1 5 6, it means 2 1 5 6. Then product of all these numbers is 180, and 180 is divisible by mod of this path. Mod of this path means length of this path is 4, so 180 is divisible by 4. So we have to assign all nodes like this by any number such that length of some path is divisible by product of all the numbers assigned to that nodes. Okay. So similarly if we think of simple solution, so एक solution क्या दिमाग में बनता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी पाथ कितनी हो सकती है, ऑब्वियसली 100. ओके, सो ये तो मैक्सिमम लेंथ 5 है, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है. अभी मैक्सिमम लेंथ ना देखें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है 5. ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ, तो 5 से ज़्यादा इसमें कोई पाथ नहीं बन सकता एक्चुअली. ओके, सो सेकेंडली हम क्या करें, हम डायरेक्टली 5 तक के जितने भी प्राइम्स हैं, कौन कौन से 2 3 एंड 5 ले लें, एंड इनका मल्टीप्लाई 5 से 30. हम इसमें हर नोड को 30 असाइन कर दें. अगर हमने इसमें हर नोड को 30 असाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा ये 30 30 30 30 30 एंड 30. सिंस सिंगल नोड लोगे तब तो ऑब्वियसली 1 से डिविजिबल होगा. 2 नोड्स लोगे तो प्राइम फैक्टर, हमने सारे प्राइम फैक्टर अप टू 5 इसीलिए लिए हैं कि 2 नोड्स लेंगे तो प्राइम फैक्टर
2 मिल जाएगा, ठीक है। 3 नोट्स लेंगे तो प्राइम फैक्टर 3 मिल जाएगा। 4 नोट्स लेंगे तो ऑब्वियसली 2 बार 2 प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे। 5 नोट्स लेंगे तो 5 एक प्राइम फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेनली हमें अफेक्ट क्या कर रहा है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ओके, एक सॉल्यूशन ये मिल गया हमें। सेकेंड थिंग, एक इसमें क्या दिक्कत है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ सम पाथ इन ग्राफ, मैक्सिमम लेंथ अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रेंट कैन बी 100, है ना। सो व्हाट इफ हमने 100 तक के सारे प्राइम लिए, तो 100 तक के सारे प्राइम क्या हो जाएंगे, 2 3 5 7 एंड लेट सपोज कुछ होंगे एंड लास्ट में 97 और इतने इतने, ठीक है। इन सब का प्राइम फैक्टर अगर हमने इन सब का मल्टीप्लाई किया तो एक सेकेंड हम कर लेते हैं। वन सेकेंड गाइस। सो प्रोडक्ट ऑफ आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अप टू 100 देखना, ठीक है। सो इट विल बी मोर देन 10 raised 18, okay, it will be more than 10 raised 18, but what is our constraint for AI, that is 2 into 10 raised 18, so obviously वो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। so we can not assign that. Now we will think of a solution in which we will divide these prime numbers up to 100 in two parts, okay, in two parts in the sense, in two parts like एक सेट में हमारे कुछ प्राइम नंबर्स आ जाएंगे और दूसरे में कुछ आ जाएंगे, एंड ऑब्वियसली जब ऐसा करेंगे हम तो उनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, लेस देन 10 raised 18, ठीक है। लेट से P1 इसका प्रोडक्ट है इन प्राइम नंबर्स का एंड P2 इसका प्रोडक्ट है, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम BFS लगा देंगे अपने ग्राफ में। BFS अगर आपने नहीं पढ़ा तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च आप अपने GFG से या कहीं से पढ़ लो तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट होगा, ठीक है। अब हम अपने ग्राफ में क्या करेंगे, अपने ग्राफ में लेट सपोज हमारा ये ट्री है, सॉरी ग्राफ नहीं ट्री, लेट सपोज हमारा ये ट्री है, ठीक है। ये ट्री है। BFS कैसे लगेगा, हमने ये वाला नोड लिया, इस नोड में हमने असाइन करवा दिया P1, ठीक है, लेट सपोज। अब इससे जितने भी दूसरे कनेक्टेड नोड्स हैं, ये इसको हम क्या दे देंगे, P2, इसको भी क्या दे देंगे, P2, इसको भी क्या दे देंगे, P2, एंड इसको भी क्या दे देंगे, P2। सो इफ फ्रॉम दिस नोड वी हैव कंसीडर्ड एनी पाथ ऑफ लेंथ 2 इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो P1 क्रॉस P2 हो जाएगा, है ना। P1 क्रॉस P2 हो गया, सो हमें 1 से 100 के सारे नंबर प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। दैट्स वाई हमने ऐसा किया। अब P2 में आए जब, तो P2 से इस वाले नोड से जितने भी ऑल कनेक्टेड हैं उसको हम क्या दे देंगे, P1, इसको P1, ठीक है। तो BFS लगा के हम ऐसा करेंगे, इसको भी क्या दे देंगे, इसको तो दे चुके, सॉरी, इसको क्या दे देंगे, P1। अब P1 से कनेक्टेड है तो इसको क्या दे देंगे, P2, इसको क्या दे देंगे, P2। सो इस तरह से हम अपने सारे ग्राफ को प्रोडक्ट असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक सॉल्यूशन। अब रही बात हमारी कि P1 और P2 हम कैसे निकालेंगे। सो P1 और P2 का निकालने का क्या तरीका है, मैं ये बताता हूँ। हमने क्या किया, हमने सारे प्राइम नंबर्स निकाल लिए 1 to 100 तक के, ठीक है। कुछ आते हैं प्राइम नंबर्स 25, ठीक है। 25 प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास 1 to 100 तक के।
हमें इन प्राइम नंबर्स के दो सेट में डिवाइड करना है सच दैट दोनों का प्रोडक्ट 10 रेज 18 से कम है ना, 10 रेज 18 से दोनों का प्रोडक्ट कम है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक सबसेट ऑफ whole prime 25 prime numbers and check in each step that प्रोडक्ट 10 रेज 18 से कम आ रहा है कि नहीं. ठीक है, तो इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं. आप सारे प्राइम नंबर्स को लिख लो और आपको बस किसी भी तरह प्रोडक्ट 10 रेज 18 से कम बनाना है दोनों का. ठीक है, तो आप 25 के सारे सबसेट भी कैलकुलेट कर सकते हो. ऑब्वियसली एक अलग से प्रोग्राम बनाओ. ठीक है, और उस प्रोग्राम में आप सिंपली दो नंबर इन दोनों के P1 और P2 कैलकुलेट करो. ठीक है, और P1 और P2 कैलकुलेट कैसे करोगे, इसके सारे सबसेट्स बनाओ और सबसेट्स का प्रोडक्ट लेते जाओ. ठीक है, सबसेट का प्रोडक्ट लेते जाना और इसका जैसे P1 है, ठीक है 18 है मान लो, तो इसका कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई 18. ठीक है, तो इसका मान लो 36 आ गया. तो आपको P1 और P2 दो वैल्यूज़ मिल गई. फाइन, उसके बाद का कोड मैं अभी आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा. ठीक है, तो आपको ऐसे ही एक अलग से प्रोग्राम लिखना है और P1 और P2 की दो वैल्यूज़ जनरेट करनी है. ठीक है, फाइन. नाउ रेस्ट ऑफ द कोड इज ओके है भैया. सो क्या किया, सबसे पहले ये P1 और P2 है, इंट x एंड y. ओके, सो ये अलग से कोड लिखो एंड जनरेट कर लो. नीचे आते हैं, हमने टेस्ट केस लिए, एन इनपुट लिया, एक एरे बना ली, एक वेक्टर ऑफ एरे बना लिया जिसमें हम अपना ग्राफ स्टोर करवाएंगे. ठीक है, फाइन, फॉर BFS. ठीक, फिर अपने सारे इनपुट लिए ए एंड बी एंड एजेस स्टोर करवा दी. V of A में B obviously and since this is undirected graph so V of B में A. ओके, अब ये मिल गया हमें वेक्टर ऑफ एरेज के फॉर्म में अपना ग्राफ. देन BFS में व्हाट वी डू, वी टेक अ क्यू. ओके, एंड एक विजिटेड एरे ले ली. विजिटेड एरे में ऑब्वियसली n+1 साइज की लेंगे बिकॉज 1 से n तक के नोड हैं, तो इंडेक्सिंग 0 से होगी, तो हमने n+1 साइज की ले ली. एंड एक आंसर एरे जिसमें हम अपने आंसर स्टोर करवाएंगे कि a ऑफ i को हमने ये वैल्यू असाइन करवानी है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट नोड, ऑब्वियसली रूट नोड. ओके, तो रूट नोड वी मेड ट्रू एंड रूट नोड टू रूट नोड वी हैव असाइन वैल्यू x और P1 प्रोडक्ट P1. नाउ क्यू में हमने क्या किया, 1 पुश कर दिया इनिशियली पेरेंट नोड. ठीक है, देन वाइल BFS का लूप लगाया, वाइल क्यू डज नॉट इज इक्वल्स टू एम्प्टी, हमने क्या किया, पेरेंट नोड को दे दिया क्यू डॉट फ्रंट. अब हमारा जो पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड इन द सेंस लेट सपोज ये हमारा पेरेंट नोड ले लिया हमने. ठीक है, जो क्यू में फ्रंट पोजीशन पे था वो पेरेंट ले लिया. अब पेरेंट के जो जो चाइल्ड होंगे ये एंड ये, इन सबको हम नोड असाइन करवाएंगे, इन सबको हम प्रोडक्ट असाइन करवाएंगे. ठीक है, सो यही कर रहा हूँ मैं. पेरेंट नोड ले लिया और ऑब्वियसली हर स्टेप पे एक क्यू का एलिमेंट पॉप कर दिया. ठीक है, अब हमने क्या किया, पेरेंट नोड में ट्रैवर्सिंग की, पेरेंट नोड में ट्रैवर्सिंग की एंड अगर कोई उसका चाइल्ड पहले से विजिटेड है तो लूप कंटिन्यू कर दिया, नेक्स्ट चाइल्ड पे आ गए. अगर विजिटेड नहीं है तो हमने विजिटेड में उसको ट्रू कर दिया, दैट वी हैव विजिटेड दैट चाइल्ड नोड एंड ऑब्वियसली अब उसको अपने क्यू में पुश कर देंगे बिकॉज ऑब्वियसली जब इसको हमने अपने क्यू में पुश किया है, इसको हमने विजिटेड ट्रू किया है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या देखना होगा, इससे कनेक्टेड वाले चाइल्ड नोड्स. ठीक है, तो हमने अपने क्यू में इसको पुश कर दिया. नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव डन, इफ आंसर ऑफ पेरेंट नोड इज x देन आंसर ऑफ i चाइल्ड नोड विल बी y. ऑब्वियसली हमने यही सपोज किया था, इफ आंसर ऑफ पेरेंट नोड x है मतलब इसका आंसर P1 है, तो इसके चाइल्ड नोड का आंसर कितना हो जाएगा, P2. सो सेम थिंग वी हैव डन एंड एल्स में आंसर P1 हो जाएगा.
ठीक है, तो ये हमने बी एफ एस लगा लिया एंड एंड में हमने क्या किया, अपनी आंसर एरे आउटपुट दे दी। तो इसको बी एफ एस या डी एफ एस समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो हम डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने एक पेरेंट नोड से कनेक्टेड सारे चाइल्ड नोड को असाइनमेंट करवा दिया वैल्यू की, देन अपने फर्दर चाइल्ड नोड को पेरेंट बनाया और उससे असाइन करवा दिया जितने भी चाइल्ड नोड हैं उसके। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Feel free to subscribe if you have not subscribed yet, and if you have any doubt you can ask in comment section, and obviously subscribe कर दो। Thank you guys for watching.